کے ناموں سے رسالت پر پہرا دیا اور یہ کہہ رہے تھے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، اور بس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج پھر ایک ویڈیو لے کر، ایک پیغام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ جی ہاں، آج ایک ایسے اللہ کے نیک بندے، ایک عاشق مصطفیٰ کا ذکر خیر آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کرنے آیا ہوں۔ جی ہاں، جس نے پوری زندگی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو خود بھی سیکھا اور اس چراغ کو دوسروں تک بھی پہنچایا اور روشنیوں کو گھر گھر جا کر عشاقان مصطفیٰ کے دل میں اجاگر کیا۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، میری مراد ایک ایسا مرد قلندر جس نے اس پرفتن دور کے اندر نوجوانوں کے دل میں عشق مصطفیٰ کی امنگوں کو اجاگر کیا۔ جی ہاں، ختم نبوت کے معاملات پر جب جگہ جگہ ڈاکہ ڈالنا شروع کیا گیا تو وہی مرد قلندر وہ میدان میں آیا اور عملی اقدامات کے ساتھ، عملی جامے کے ساتھ اس نے میدان میں آ کر ایسا انقلاب برپا کیا کہ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے دانشور لوگ، بڑے بڑے عمراء وزراء بھی کیا ہے اپنے فیصلے کو تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کیونکہ اس کے دل کے اندر جو ایمانی جذبہ تھا، وہ جذبہ ایمانی ایسا تھا کہ اگر وہ جذبہ ایمانی ہر مومن کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر ایک نیا ہی اسلام معرض وجود میں آ جائے گا، ایک ایسا ابھرتا ہوا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین نافذ ہوگا۔ وہ ہے نا کہ بدر کے مقام پر 313 تھے لیکن جذبہ ایمانی تھا، محبت مصطفیٰ تھی، اور وہ جذبہ ایمانی جو بدر والوں کے اندر نظر آتا تھا وہی جذبہ ایمانی ایک ایسے عاشق صادق کہ جو کیا ہے ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی جس نے اللہ اکبر کبیرہ یہ نعرہ لگایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، کیسا جانا، کیسا مانا، نہ دنیا کی پرواہ نہ دنیا داروں کی پرواہ، بس اگر راضی کرنا ہے تو کملی والے آقا کو راضی کرنا ہے۔ کملی والے آقا کی بات پر ایک ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے لاکھوں لوگ جو اپنی جانوں پر زندگی گزار رہے ہیں، اپنی ٹانگوں پر چلنا پھرنا کر رہے ہیں، وہ کام ایسے لاکھوں لوگ نہ کر پائے جو ایک بابا ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا عمر کے اس حصے میں کر گیا کہ نوجوانوں کے دل میں عشق مصطفیٰ، پیارے آقا کی ختم نبوت پر، پیارے آقا کی ختم نبوت پر پہرا دینا سکھا گیا کہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں۔ جی ہاں، اصل میں اس شعر کو دوبارہ اجاگر کیا ہے تو وہ اس مرد قلندر نے کیا ہے۔ سوچ رہے ہوں گے وہ مرد قلندر کون ہے؟ جی ہاں وہ ولی کامل ہے، وہ اس دور کا ولی ہے۔ جی ہاں اس کا نام خادم حسین رضوی ہے۔ رضویت کی اصل للکار اس کے جسم میں، اس کی نفوس میں، اس کی جان میں نظر آتی ہے، چھلکتی ہے۔ اصل رضویت کا پیغام، پرچار رضویت کا جو کر گیا ہے وہ خادم حسین رضوی مدد اللہ العالی کر گئے ہیں۔ جی ہاں آج کچھ انہی کے بارے میں چھوٹی سی عرضی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نام خادم حسین رضوی ہے، والد کا نام حاجی
फजल है, वालिद का नाम हाजी लाल है। जी हाँ, और उनका जो मकाम विलादत है, पिंडी घेप में पैदा हुए, विलादत 3 रबीउल अव्वल को हुई। और आपके जो अलक़ाबात हैं, सिर्फ वो कहते हैं ना मुबालगा आराई नहीं, बल्कि हकीकतन इन अलक़ाब के वो मिस्दाक थे। जी हाँ, शेखुल हदीस व तफसीर, सर्फ व नहव में कमाल महारत रखने वाले, अल्लाह अकबर कबीरा। हम सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, उन्होंने कुरान समझ कर पढ़ा है। अलहम्द से लेकर वन्नास तक सर्फ की ऐसे ही गर्दाने पढ़ दिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। कई साल तक आप दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखे हुए थे और फिर ऐसे अमली मैदान में आए, ऐसा अमली कदम उठाया कि खत्म नबुव्वत पर ऐसा पहरा दिया कि रहती दुनिया तक एक मिसाल कायम कर दी। जी हाँ, 3 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाला शख्स, उसके अलक़ाबात जरा समाअत फरमाइए। शेखुल हदीस व तफसीर, अमीरुल मुजाहिदीन। जी हाँ, इमामे ज़माना, पासबाने खत्म नबुव्वत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी मद्ददिल्लाहुल आली। अल्लाह तबारक व तआला उनकी बरकत में करोड़ हा करोड़ रहमतों और तजल्लियात का नुज़ूल फरमाए। जी हाँ, जब जिंदगी गुजार रहे थे, कैसा खत्म नबुव्वत पर पहरा दिया, किसी से ढका छुपा नहीं है कि अपनी जान का नजराना भी ना किया। 6 महीने तक खत्म नबुव्वत के हवाले से जेल काटी और पूछा गया कि आपने जिंदगी की इतनी उम्र पाई, लेकिन क्या खोया क्या पाया? तो आप कहते हैं कि 6 माह जो मेरे ये जेल में गुजरे हैं, बस मैं समझता हूं कि यही पाया है, बकिया का तो नहीं पता, क्योंकि मैंने जो पहरा दिया है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर पहरा दिया है। और खादिम हुसैन रज़वी, नाम खादिम हुसैन था और हुसैनी किरदार भी था, हुसैनी जज्बा नजर आया। जी हाँ, आज तक तो हमने फकत इमाम हुसैन और रुफ़क़ाए कर्ब बला वालों के जो किरदार थे वो सुने थे। खादिम हुसैन रज़वी की सूरत के अंदर वो किरदार हमें अमली तौर पर नजर में आया। अल्लाह अकबर कबीरा। फैज़ाबाद के मकाम पर फकत किस लिए बैठे थे? इसलिए बैठे थे कि अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी जनाब रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन की नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए बैठे थे। 295C के अंदर जो तरमीम की जा रही थी, उस तरमीम के इजाले के लिए बैठे थे। जी हाँ, तड़कती सर्दी के अंदर कई सेंटीमीटर बुखार था, 103 के करीब उनको बुखार था, लेकिन फिर भी क्या है, नामूस रिसालत की खातिर एक व्हील चेयर पर बाबा कह रहे थे कि बस उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, किसी ने पूछा, अल्लाह अकबर कबीरा, फैज़ाबाद के मकाम पर कि अब तो आप पर जिंदगी गुजारना दुश्वार कर दी है, अब तो पानी बंद कर दिया है। तो उस जहांबाज सिपाही अमीरुल मुजाहिदीन ने आए बाएं शाएं करते हुए जवाब नहीं दिया कि ये होगा फला होगा ये होगा, नहीं, बल्कि जवाब दिया अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई तकलीफ है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं। परेशानी को, तकलीफ को भी मोहब्बत से अपने गले लगाया हुआ था। उस नामूस रिसालत के पहरेदार ने कहा कि कल तक तो हम सुनते थे कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो पर पानी बंद किया गया था, आज हम देखते हैं कि हम इश्क का दम भरने वाले, इश्क के बोल कहने वाले गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा लगाने वाले इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत का दावा करने वाले इमाम हुसैन की सुन्नत पर अमल करते हैं या नहीं करते, कि इन पर पानी बंद होता है सब्र करते हैं या वावेला करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर दुनिया ने देखा फैज़ाबाद के मकाम पर पानी बंद किया गया, आप पर क्या है और रुफ़क़ाए अमीरुल मुजाहिदीन पर तंग कर दी गई जमीन। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि आप पर और आपके लश्कर वालों पर बारूद बरसाए गए। जी हाँ, शेलिंग की गई,
फायरिंगें की गई, लेकिन वो भागे नहीं मैदान छोड़कर, बल्कि नामूसे रिसालत पर पहरा दिया और ये कह रहे थे ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों या रसूल अल्लाह तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। और बस यही सदा आ रही थी खादिम हुसैन रज़वी के ज़बान मुबारक से कि पुत्रों आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना, हमने डरना नहीं है, हमने जानों का नजराना देना है, हमने प्यारे आका पर अपनी जानों को कुर्बान करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर यही दर्ज देते हुए उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना की सदाएं लगाते हुए फिर इस दुनिया से वो अमीरुल मुजाहिदीन, वो पासबान खत्म नबूवत, वो नामूसे रिसालत का पहरदार इस दुनिया से वफात पा गया। वो दिन कौन सा दिन था? 4 रबीउल सानी थी, 19 नवंबर था, बरोज जुमेरात थी और क़ज़ा का वक्त आ गया, अजल का वक्त आ गया। जिंदगी ने बस आखिरी सांस ली और फिर वो अमीरुल मुजाहिदीन हम सब को छोड़कर इस दुनिया से वफात पा गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और खादिम हुसैन रज़वी जब बयान करते तो इकबाल को ऐसे पढ़ते, अल्लाहु अकबर कबीरा। इब्तिदाई जिंदगी के अंदर ही कुल्लियात इकबाल हिफ्स कर लिए थे। जी हाँ, असल में अगर किसी ने इकबाल को पढ़ा है, नहीं पढ़ा नहीं बल्कि समझा है और समझाया है, तो खादिम हुसैन रज़वी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सूरत में हमें नजर आता है। जी हाँ, हकीकी हक अदा किया अल्लामा इकबाल को समझने में, समझाने में, और बल्कि हर घड़ी ही अल्लामा इकबाल के ही तराने उनकी जबान पर होते। और फिर जब ऐसी जिंदगी गुजारी, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, और फिर जब नामूसे रिसालत के पहरेदार रहे, अल्लाह ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों को क्या अजर दिया कि लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा कैसा जनाजा था। जब वफात पाए 45 घंटे तक आपका लाशा पड़ा रहा, लेकिन मजाल है कि एक घड़ी भी उनकी चमक में कमी आई हो, बल्कि देखने वालों ने देखा और फिर ये कहा कि हर घड़ी खादिम हुसैन रज़वी का चेहरा चमक रहा था, चमक में इजाफा होता जा रहा था। और फिर जब जनाजा आया तो लिखने वालों ने लिखा कि लाहौर की जमीन तंग पड़ गई थी उस एक मर्द कलंदर के जनाजा पढ़ने के लिए। क्या जमीन, क्या दीवारें, क्या बसों की छतें, क्या ट्रकों की छतें, हर जगह पर इंसान ही इंसान। किस लिए? फकत एक मर्द कलंदर का जनाजा पढ़ने के लिए कई लाख लोगों ने, कई लाख लोगों ने लाखों रुपए का अपनी सफर के लिए इख्तियार कर कर वहां जनाजे में शिरकत की। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर किसी ने कहा था ना कि जनाजे बताएंगे कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। अल्लाह करीम खादिम हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया की मदारे और अनवार पर करोड़ों तजल्लियात का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह करीम हमें भी उनके इश्क से कुछ इश्क मुस्तफ़ा का हिस्सा अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।